السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ پاکستان بھیجے گئے کئی بھارتی ڈرونز آج بھی تباہ، ہندوستانی فوج کو ایل او سی پر بھی ہزیمت کا سامنا۔ بھارتی فوج نے ہجیرہ، فارو روڈ، کہوٹا اور کھوئی میں سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے 5 شہری شہید جبکہ 7 شدید زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج شہری آبادی پر بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں بھارتی فوج کی توپیں خاموش ہیں۔ انڈین پریمیئر لیگ معطل کر دی گئی۔ بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ بی سی سی آئی اور آئی پی ایل مینجمنٹ کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں ایونٹ کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وہاڑی، پاک پتن اور اوکاڑا میں اسرائیلی ساختہ 6 بھارتی ڈرونز تباہ کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ 6 میں سے 1 ڈرون کو وہاڑی، 1 پاک پتن، 4 ڈرونز کو اوکاڑا میں تباہ کیا گیا۔ اب تک دشمن کے کل 35 ڈرونز کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق تمام ڈرونز مسلسل ریڈار پر مانیٹر کیے جا رہے تھے۔ جب بھی کوئی ڈرون آتا ہے تو وہ مسلسل ریڈار پر دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم میں اتنی صلاحیت ہے کہ چھوٹے ڈرون کو بھی ٹریک کر لیتا ہے۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا کہنا ہے کہ بھارت نے مسلسل تیسری رات حملہ کیا ہے۔ بھارت نے کرکٹ اسٹیڈیم پر حملہ کیا۔ کرکٹ اسٹیڈیم میں کیا دہشت گرد ہوتے ہیں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کا ماضی دیکھیں، جو نیپال اور سری لنکا میں ہوا سب کو معلوم ہے۔ بھارت کو ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان خاموش رہے گا۔ بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ پر پاک فوج کا جواب، کئی بھارتی چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کے نتیجے میں پاکستان کی جوابی کارروائی جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کلر سیکٹر میں ڈوبا بورڈ پوسٹ اور بیٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا گیا۔ سوجی اور پیر کانتی سیکٹر میں جبار اینڈ ترکیہ کمپلیکس مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ حاجی پیر سیکٹر میں بھارتی فوج کی رنگ کٹوئر پوسٹ تباہ کر دی گئی۔ پاک فوج نے دشمن کی پوکران ماٹر بکر پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا۔ فرانسیسی اخبار لی مونڈے نے بھارتی فضائیہ کی نااہلی اور پاکستان پر بزدلانہ حملے کو بے نقاب کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ پاک فضائیہ نے بھارتی رافیل سمیت کم از کم 3 لڑاکا طیارے تباہ کیے، جس کی تصدیق بھارتی سیکیورٹی ذرائع نے بھی کی ہے۔ اخبار کے مطابق بھارتی فضائیہ کی تکنیکی خامیاں، ناکافی تربیت اور 8 ارب یورو میں خریدے گئے رافیل طیاروں کی تباہی مودی حکومت کی بڑی ناکامی اور شرمندگی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا اور دفاعی ماہرین نے بھی بھارتی فضائیہ کی کمزوریوں پر سوال اٹھا دیے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان دشمن کی بزدلانہ کارروائیوں کا بھرپور جواب دے رہی ہیں اور ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ شہری غیر مصدقہ معلومات نہ پھیلائیں، افواج کی نقل و حرکت کی ویڈیوز بھی نہ بنائیں۔ لاہور پولیس موک ایکسرسائزز اور مسلسل پیٹرولنگ کے ذریعے شہریوں میں حساس تحفظ پیدا کر رہی ہے۔ عوام متحد ہو کر اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ السلام علیکم۔ موجودہ ملکی صورتحال میں بطور شہری ہم سب کے کچھ فرائض ہیں، ان کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے اور مل کے کام کرنا ہے۔ ہمارے ادارے، ہماری افواج پاکستان ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے اوپر ایکشن لینے کے لیے بالکل تیار بھی ہیں اور اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پہ اعتماد کریں، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور ایسی غیر مصدقہ اطلاعات اور خبروں کے اوپر توجہ نہ دیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری ایسی ویڈیوز جو گزشتہ واقعات کی ہیں وہ ان حالات کے ساتھ منسلک کر کے ہمارے ہی ملک کے لوگ، ہمارے ہی شہری وہ لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ایسی سچویشنز کے اندر قومیں متحد ہو جاتی ہیں، تمام لوگ اپنے آپسی جو اختلافات ہیں وہ بھلا کے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور اپنے اداروں کو پورا سپورٹ کرتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہوتی۔ لیکن اس طرح کی جب کسی ایل پی جی سلنڈر سے ہونے والے کسی بلاسٹ یا کسی واقعے کی ویڈیو کو اگر ہم ساتھ لگاتے ہیں اور اس کو موجودہ حالات میں اس کے کیپشن لگا کے کہ جی یہ فلاں ملک کی طرف سے یہ اٹیک ہو گیا، اس طرح کی اگر بات کرتے ہیں تو اس سے اوورآل ایک انسرٹینٹی کا پہلو ایک دم معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں پہ، غیر مصدقہ اطلاعات پہ ہم نے بالکل توجہ نہیں دینی۔ پنجاب پولیس اور لاہور پولیس خاص طور پہ ہم لوگ موک ایکسرسائزز بھی کر رہے ہیں، ہم ڈرلز بھی کر رہے ہیں، ایویکویشن ڈرلز بھی کر رہے ہیں، سول ڈیفنس کے ساتھ، ریسکیو 1122 کے ساتھ۔ کسی سچویشن میں ہم نے اپنے شہریوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کہیں سے ایویکویٹ کرنا ہے، انہیں گائیڈ کس طرح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اپنی فورس کو بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم شہریوں کو بھی یہ چیزیں کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں
जहाँ पे क्राउडिंग होगी, जहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाएंगे किसी ऐसे वाक़े की जगह पे, तो वो बजाते खुद एक खतरनाक सिचुएशन बन जाती है। कहीं पे ऐसा कोई वाक़या होता है, अपने इदारों को पूरा सपोर्ट करें। उस जगह पे सब ने रश नहीं करना होता, वो आपकी सेफ्टी के लिए भी मुनासिब नहीं है। ऐसी जगहों के ऊपर पुलिस को, इदारों को, रेस्क्यू को अपना अपना काम करने देना चाहिए, और ऐसी जगह से जहाँ से कॉर्डन ऑफ किया जाए जिसको, वहाँ से पब्लिक को थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए कि कोई सेकेंडरी इस तरह के अटैक की जद में ना आके हम को बड़ा नुकसान ना कर बैठें। बहुत सारी व्हाट्सएप पे चलने वाली बहुत सारी इतलात, बहुत सारे गैर मुसद्दिका मैसेजेस इवैक्यूएशन से मुतालिक, गांव खाली कराने से मुतालिक, किसी जगह पे फोर्सेस की मूवमेंट के मुतालिक, वो गैर तस्दीक शुदा ऐसी इंफॉर्मेशन पे तवज्जो बिल्कुल ना दें। तमाम चीज़ें जो आपको ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू, जो आपको सरकारी इदारों के जो मुस्तनद ज़राए हैं, वहाँ से जो शेयर की जाएं, सिर्फ आप उस पे तवज्जो दें। ये प्रोपेगेंडा की भी वॉर है, ना सिर्फ ये हम जो चीज़ें फिजिकली देख रहे हैं, उसके अलावा ये एक प्रोपेगेंडा भी चल रहा है जहाँ पे दुश्मन मुल्क की तरफ से बहुत सारी अनसर्टेनिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मौक़ों पे मुत्तहिद होके अपने इदारों का साथ दें, और किसी किस्म की हमें अपने इदारों पे एतमाद भी करना है। हमें पूरा भरोसा है कि पाक अफवाज भी और हमारे तमाम इदारे मिल के इस सिचुएशन में अपने शहरियों के साथ मिल के इस क्राइसिस सिचुएशन से इंशाल्लाह जल्दी बाहर निकल आएंगे। जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन CBA की क़यादत ने आज सेवर फूड पर कॉर्नर मीटिंग की, जिसमें यूनियन अहदेदारान और PHA सुपरवाइजर्स ने शिरकत की। शुरका ने 2026-27 के इंतखाबात में यूनियन का साथ देने और कामयाबी दिलवाने का आज़म दोहराया। दीना पिंडोरी मंगला रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी पुल से नीचे गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 ने लाशें DHQ अस्पताल जेलम मुंतकिल की। बरनाला आज़ाद कश्मीर में पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग और ड्रोन हमलों से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। इस हवाले से मजीद तफसील बताएंगी मुक़द्दस मलिका। जी मुक़द्दस, बताइएगा। जी, हमारे साथ एक नबीना हाफिज साहब हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अज़म उनका भी इतना है कि इस वक्त LOC पर मौजूद हैं। जी सर, जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है भारत, लेकिन उसके नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दिया गया, क्या कहेंगे आप? जी, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हमने जवाब बहुत अच्छा उसे दिया है, तो आगे भी हमें यही तवक्को है कि अच्छा जवाब देंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से कि जिहाद का ऐलान करें, और इंशाल्लाह सिविलियन भी, आम लोग भी फौज के साथ होके हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करेंगे और इंशाल्लाह कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। मेरा यही मुतालबा है कि ऐलान जिहाद किया जाए, क्योंकि हमें बदर की, अभी शाह साहब ने जिक्र किया था कि 313 1000 पे गालिब आए थे। करबला को देख लें कि 72 जो है वो 22,000 पे गालिब आए। आज 72 का नाम जिंदा है, 22,000 का कोई नाम नहीं ले रहा। तो हम तो उनके मानने वाले हैं, हमारे इस्लाफ के का तो ये किरदार है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐलान जिहाद किया जाए और अवाम को भी जो है वो तरबियत दी जाए, और हम सब मिल के अफवाज पाकिस्तान के साथ मिल के हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करेंगे, और इंशाल्लाह कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह एक दिन वो दिन लाएगा कि मकबूजा कश्मीर आज़ाद होके रहेगा, और लाल किले पे इंशाल्लाह जो है वो इस्लाम का परचम जो है वो लहराएगा। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया मुक़द्दस मलिक हमान ने हमें अपडेट किया। साहिवाल में महकमा जंगलात के मुलाजमीन की मुबैना बिली वक़्त से सरकारी दरख्तों की चोरी उरूज पर पहुँच गई, ऐसा इंकिशाफ हुआ है। मजीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइएगा। थाना हड़प्पा का इलाका है, वहाँ पे मौजूद है 187 नौ लड्डा है। यहाँ के जो रेलवे के मुलाजिम है, उन्होंने एक बंदा पकड़ा है जो नशई है, दरख्त किक्कर का दरख्त काट के उसने होटल वालों को फरोख्त कर दिया है। लम्बा फिक्रिया ये है, सरकारी मुलाजमीन या साहिवाल के जो मुलाजमीन है महकमा जंगलात के, उनके लिए एक शर्म का मकाम ये है कि उनकी इलाका उनका है, रेलवे के मुलाजमीन पकड़ रहे हैं चोरों को। रेल वाले तो असीं अगे फाटक दे नाल परां काम कर रहे हैं जी, तो मेट साहब ने इधर शख्सी को काम दा वो आए सी इधर फाटक वाला, ते वो इत्थों गुजरे सन, ते यह बंदा जी किते रात दा वड्डिया या जदों भी वड्डिया कोई नहीं सानू पता। ਉਹ ਮੇਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਰੇੜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਲੱਕੜ ਉੱਥੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਤੇ ਰੱਖੀ ਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਟ ਹੋਰੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਵਕੂਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਜੀ, ਬਸ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਕੜ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ 2 ਟੋਟੇ ਉਧਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਦਵਾ ਬੰਬੜ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਉਹ ਵੀ 60-80 ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਲ। ਬਾਬਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। 100 ਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਲੱਕੜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ मुल्क को बचाना या तबाह करना। मुतअद्दिद दरख्त गायब हो चुके हैं, पूरे मुल्क का कर्जा उतारा जा सकता था अगर ये दरख्त नीलाम कर दिए जाए। ये सिर्फ मुलाजमीन के लिए छोड़े गए हैं, अगर इन मुलाजमीन का ऑडिट हो जाए तो इनके भी घरों से दरख्त बरामद हो सकते हैं। ये महकमा जंगलात के मुलाजमीन को दूध के धुले नहीं है। चोरी तब होती है जब इसमें मुलव्वस होते हैं मुलाजिम। महकमे के बगैर चोरी होना नामुमकिन है, किसी सूरत में चोरी नहीं हो सकती। ये खुद महकमा जंगलात इसमें मुलव्वस है। महकमा जंगलात के मुलाजमीन के साथ वज़ीर आला साहब चेक करवाएं। आप गरीबों के मकान गिराने पे लगी हुई हैं, तजावज़त का खात्मा हो रहा है, मकान गिराए जा रहे हैं, इनके भी साथ चेक करें। जो बैठे हैं डेरे डाल के, नंबरदार बने हुए महकमे के, इन्होंने एक दरख्त नहीं छोड़ा, रोड वीरान कर दिए हैं। करोड़ों लाखों मालियत के दरख्त गायब हो चुके हैं। आप ये कार्रवाई के लिए आ गए क्योंकि ये मीडिया पे आ गया मामला, ये FIR भी हो जाएगी, जुर्माना भी हो जाएगा। इससे पहले जितने होटल हैं हड़प्पा के गिरदोनवा, सब पे महकमा जंगलात के दरख्त रोजाना के हिसाब से चोरी होते हैं। होटल मालकान मुलव्वस होना का एक तो उनका जुर्म तो है ही है, लेकिन ये महकमा भी मुलव्वस है इसमें। इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा, ये लोग मुंतजर है इस बात की। जी साहिवाल में हिंदुस्तान का सिविलियन आबादियों पर बुज़दिलाना हमला और पाक फौज का दिलेराना जवाब। शहर भर में इंतजामिया, सिविल सोसाइटी, साफियों और तलबा का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती का इजहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रेस क्लब के बाहर सब इकट्ठे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी इकट्ठे हैं और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद भी मौजूद है जो कि अपनी पाक फ़ौज के साथ यकजहती का इजहार कर रही है, पाकिस्तान के लिए खड़ी है। सिर्फ एक पैगाम मैं देना चाहूँगा कि हमसे आप ये तवक्को ना कीजिएगा कि आप हम पे हमला करेंगे और हम आपका जवाब नहीं देंगे। हमने पहले भी आपको जवाब दिया, दूसरी बार भी जवाब दिया और तीसरी बार इससे दुगनी तवानाई के साथ जवाब देंगे, क्योंकि हम उस मज़हब के मानने वाले हैं जो कि अमन पसंद कौम है। लेकिन अगर हम पे पहल हुई तो हम दूज होने नहीं देंगे। आप सब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी मौजूद है, अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठे हुए हैं और इंडिया में इस वक्त जो है रात के वक्त सायरन बज रहे हैं, ब्लैक आउट हुआ हुआ है। हम जिंदा कौम है और अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया। आज हम अफवाज पाकिस्तान के साथ साहिवाल प्रेस क्लब की जानब से अज़हार यकजहती कर रहे हैं। बुज़दिलाना हमला जो भारत की जानब से शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसमें हमारे 26 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं, उसकी मज़म्मत भी करते हैं और इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के साथ अज़हार यकजहती करते हुए हम अफवाज पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि पूरी कौम, जनरल समेत असातिज़ा, जितने भी उलमा कराम और जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हैं और पाकिस्तानी फ़ौज के शाना बिशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस बात का इरादा करते हैं कि हम दुश्मन को नाको चने चुबाएंगे और उनको 1965 की याद ताज़ा कर देंगे, जब हमने उनके इलाकों में जाकर घेर कर उनको मारा था और उनके इलाकों पर कब्ज़ा किया था और बाद में जो इंडिया था वो सुलह उनको अपने घुटने टेकने पड़े थे। तो इंशाअल्लाह ताला वही सलूक होगा, वही जवाब आएगा जो इंडिया हमारे साथ करेगा, उससे ज़्यादा हम सख्त जवाब देंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी फ़ौज पाकिस्तान वेल इक्विप्ड है, दुनिया की पहले 10 नंबरों पे आने वाली फ़ौज है। तो हमसे किसी किस्म की इस बात की तवक्को ना की जाए। हम अमन पसंद ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ जंगजू भी हैं, पूरी तरह जवाब देंगे और दुश्मनों को उनके मुल्क में जाकर पछाड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकपतन केनाल पार्क में पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत के बुज़दिलाना हमले में जाम शहादत नोश करने वाले शहीदों की याद में शम्माए रोशन की गई और ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। मज़ीद तफसील देखते हैं अदील आबिद डोगर की रिपोर्ट। भारत के बहीमाना और बुज़दिलाना हमले में शहीद पाकिस्तानियों की याद में पाकपतन केनाल पार्क में एक पुरसोज तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के अहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी मग़फ़रत की दुआ की गई और शम्में रोशन की गई। आज हम जिला पाकपतन में जो सारी सिविल सोसाइटी ऑफिसर्स पार्लियामेंटेरियन इकट्ठे हुए हैं, कल रात को जो इंडिया ने एक बुज़दिलाना अटैक किया उसके नतीजे में हमारे मासूम बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे जो कि इसका शिकार हुए और जिन्होंने शहादत नोश फरमाई,
उनके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, उनके लिए दुआ की है। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारक, डीपीओ जावेद इकबाल चद्दड़ और एमपीए चौधरी जावेद अहमद ने खसूसी शिरकत की। तलबा, सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदगान भी शामिल होकर भारतीय जारहियत और पाकिस्तान दुश्मनी बारे खुलकर मजम्मत की और मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे कायम हुआ और हम बहैसियत मुसलमान शहादत को अपना आला दर्जा समझते हैं। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। भारत इंतहा पसंदी से बाज रहे, वगरना हमारी अफवाज पाकिस्तान और कौम मोदी हुकूमत को नाकूच चने चबवा देगी। चिन्योट में रेलवे लाइन से लड़की की लाश बरामद हुई। पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौका पर पहुंच गई। लाश का पोस्टमार्टम THQ लालिया में हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नामालूम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए DSP लालिया की निगरानी में स्पेशल टीमें तश्कील दी थी। मेलसी में कायद-ए-आज़म रोड पर तेज आंधी और बारिश के दौरान खस्ता हाल दीवार गिरने से 14 साला बच्चा मौका पर जाबहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक वो वालिद के साथ सोडा वाटर की दुकान पर काम कर रहा था। वाक़े पर इलाका सोगवार, जबकि इंतजामिया ने गैर यकीनी मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी। चांगामांगा में जमात इस्लामी और योगा क्लब के ज़ेर एहतमाम पाक आर्मी से इजहार यकजहती और भारतीय जारहियत के खिलाफ रैली निकाली गई। शुरका ने इंडिया मुखालिफ नारे लगाए, बैनर्स उठाए और मुल्क व फौज की सलामती के लिए दुआएं की। रैली योगा क्लब से शुरू होकर रेलवे फाटक पर इख्तिताम पसीर हुई। टंडवाला यार में मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर ने ज़िला भर में एमरजेंसी नाफिज करते हुए तमाम इदारों, हस्पतालों और रेस्क्यू 1122 को हाई अलर्ट कर दिया। अफसरान की छुट्टियां मनसूख और एमरजेंसी सेंटर्स कायम कर दिए गए। शहरियों से अपील की गई कि अफवाहों पर यकीन न करें। इंतजामिया, मुआवन इदारे और पाक फौज अलर्ट और मुत्तहिद हैं। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।